السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ ہم اپنے پیارے پاکستان پر کریں گے، اور پیارے پاکستان کا ایک حصہ پنجاب بھی ہے۔ ہم اپنے پیارے پنجاب پر بھی بات کریں گے، کیونکہ بیسیکلی طور پر تو میں پنجاب کی ہوں۔ سندھ میرا سسرال ہے اور پنجاب میرا مائکہ ہے، اور اپنے مائکہ کے خلاف ہم کچھ نہیں سننے والے بھائی۔ سوچ سمجھ کر بات کیا کریں ہمارے پنجاب کے اوپر۔ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، جو بھی مطلب ہمارے 4 صوبے ہیں، چاروں صوبوں میں اچھے بھی لوگ رہتے ہیں، برے بھی لوگ رہتے ہیں۔ آپ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ پنجاب میں برے لوگ رہتے ہیں اور سندھ میں اچھے لوگ رہتے ہیں؟ سندھ بھی اچھے لوگوں کا ہے اور پنجاب بھی اچھے لوگوں کا ہے، اور باقی بھی جو ہمارے صوبے ہیں وہاں پہ اچھے برے تمام لوگ ہی رہتے ہیں۔ یہاں حیدرآباد میں جو ہمارا اس وقت موجودہ شہر ہے جہاں پر میں رہتی ہوں، یہاں پر بھی آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ آپ سوچ کر کانپ کر رہ جائیں، مطلب آپ کی روح تک کانپ اٹھے کہ ایسے ایسے واقعات ہمارے حیدرآباد، کراچی میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، تو ہم ان پر آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ ہم آواز اٹھاتے ہیں تو صرف اور صرف پنجاب کے اوپر۔ پنجاب والوں نے ایسا کیا ہمارا بگاڑا ہے جو ہم پنجاب پر آواز اٹھائیں؟ لاہور ہمارا خوبصورت شہر ہے، پنجاب کا ایک شہر لاہور بھی ہے جو کہ خوبصورت شہر ہے، ایک شہر ملتان ہے وہ بھی خوبصورت شہر ہے۔ تو بھائی آپ جا کر وزٹ کریں، دیکھیں کہ ہمارا پنجاب کتنا خوبصورت ہے، اور ہمارا سندھ بھی بہت خوبصورت ہے، کیونکہ میں نے سندھ اور پنجاب کے علاوہ ابھی تک کوئی اور کنٹری نہیں دیکھی ہے، تو جو میں نے دیکھا میں اسی ہی پر بات کروں گی۔ تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں ہمارا سندھ اچھا ہے اور ہمارا پنجاب برا ہے، تو اس کے بارے میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ دونوں جگہوں پر اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، برے لوگ بھی رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ فرض کریں میں ہی ہوں، میرے ساتھ سندھ میں ایک شخص اگر غلط کر دیتا ہے تو سندھ کے سارے لوگ تو برے نہیں ہو گئے نا، اور وہ جو سندھ کے ایک بندے نے میرے ساتھ برا کر دیا، فرض کریں تو وہاں پر کہیں نہ کہیں میں بھی ڈیفالٹر ہوں گی، اور کہیں نہ کہیں وہ بھی ڈیفالٹر ہوں گے جنہوں نے میرے ساتھ برا کر دیا۔ تو اسی طرح پنجاب میں بھی مختلف لوگ رہتے ہیں، جہاں پر ساس بہو کا اگر جھگڑا ہوا ہے تو کہیں پر ساس بری ہے، کہیں پر بہو بری ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ساس ہی بری ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہر جگہ بہو ہی بری ہوتی ہے۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر رائٹ بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی، اور دونوں ہی اپنی جگہ پر خراب بھی ہوتی ہیں، اور جہاں پر خرابی پیدا ہو جاتی ہے وہاں پر ایسے کیس ہوتے ہیں جیسے کہ اس بچی کے ساتھ ہوا، زارا لڑکی کے ساتھ ہوا، کہ اس کی ساس نے اس کو کاٹ پیٹ کر، انسانیت کے نام پر وہ عورت ایک دھبا ہے کہ اپنی بہو کو کاٹ پیٹ کر اور نالے میں بہا دیا۔ یار انسانیت بھی شرما جائے ایسی عورتوں سے۔ میں کہتی ہوں ایسی عورتیں کو تو سرے عام پھانسی دی جائے۔ وہ جو ہماری حکومت ہے ان کو چاہیے کہ ایسی عورتوں کو چوک پر لٹکا کر پھانسی دی جائے، جو آئندہ کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچیں بھی نہ، کر گزرنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچیں بھی نہ، ان کے ذہن میں کوئی ایسی سوچ بھی نہ آئے کہ اس بچی کے ساتھ جو وہ عورت کر بیٹھی، اور اس نے اپنا کوئی یہ نہیں سوچا کہ میرا حال مستقبل ماضی کیا ہوگا، میں اس بچی کی جان لے رہی ہوں تو کیا میں محفوظ رہوں گی؟ میرے پہ پوری دنیا کی لعنت، اللہ کی لعنت، اور میرا انجام بھی وہی ہوگا جو میں نے اس بچی معصوم کا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ساس بہو کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں گھروں میں، اگر آپ کی اپنی بہو سے نہیں بن رہی تو آپ علیحدگی اختیار کر لیں، بہو بیٹوں کو ان کی زندگی پر چھوڑ دیں۔ ہم یہ کسی کی جان لینے کا سوچے بھی کیسے؟ ٹھیک ہے، لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن زبانی کلامی ہاتھا پائی والی لڑائی نہیں ہو سکتی، کسی کی جان لینے والی لڑائی نہیں ہو سکتی۔ ایسی ساسیں، ایسی نندیں میری نظر میں بہت بری ہے، کیونکہ بھائی یہ بھی کسی کی بچی آئی ہے، آپ اس کے ساتھ کیسے اتنا بڑا ظلم کر سکتے ہیں؟ آپ کو نہ پسند ہے، آپ کے بیٹے کو پسند ہے، آپ کہیں بھائی آپ اپنی بیوی کو لے کر بیٹا الگ ہو جائے، میری آپ کی بیوی سے نہیں بنتی ہے، میں آپ کی بیوی کے ساتھ نہیں رہوں گی، بس مسئلہ ختم، مسئلہ سالو۔ یہ کیا کہ آپ کسی کی بیٹی کو گھر پہ بلا کے اس کو کاٹ پیٹ کے نالے میں اس کے ٹکڑے بہا دیں؟ اور میں ایسی بہوؤں کو بھی کہوں گی
जो अपनी सासों को बुरा समझती हैं। भाई आपकी सास अगर बुरी है, फर्ज करें आपकी नंद बुरी है, आप अलग इख्तियार कर लें, उनसे ना मिलें, उनके घर भी ना जाएं और उनके बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। रही उनके बेटे की बात, वो उनका बेटा जाने, वो अपने माँ बाप से मिलता है या नहीं मिलता, अपनी बहनों को रिस्पेक्ट देता है या नहीं देता, ये उनका आपस का मसले मसाइल है। लेकिन बहू अगर उनको मतलब पसंद नहीं कर रही, सास ससुर नंदों को देवरों को, तो वो अलहदा रह सकती है। शरीयत में भी ये हुक्म आया है कि बेटे पर लागू है अपने माँ बाप की खिदमत, बहू पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि उससे जबरदस्ती आप अपनी खिदमत कराएं। ये बहू की आला ज़र्फी होगी, उसकी आला ज़हनियत होगी, उसकी अच्छी तरबियत होगी, उसके वालिदैन ने उसको अच्छा मतलब करने का कहा होगा, मशवरा दिया होगा कि अपने ससुराल में बेटा ऐसे रहना। तो वो अगर अपनी सास नंदों की इज्जत करे या खिदमत करे, तो वो उसकी अपनी सोच होगी, उस लड़की की अच्छी सोच की वो मालिक होगी। लेकिन अगर वो ये भी सोच नहीं रखती, तो उस पर दीन दुनिया में कहीं भी ये लागू नहीं होता कि वो जबरदस्ती ससुराल वाले उससे अपनी इज्जत और खिदमत करवाएं। वो अलहदा होने का हक रखती है पूरा पूरा। तो भाई हर जगह बुरे और अच्छे लोग होते हैं। आप कैसे उठकर कह देते हैं कि पंजाब के लोग ऐसे, आए दिन पंजाब पर बातें हो रही हैं। भाई बात सुने, पंजाब और सिंध हर जगह अच्छे बुरे लोग रहते हैं। यहाँ भी एक ऐसा वाकया हुआ था जो शायद आप लोग सभी जानते हो, मतलब एक नहीं 2-3 वाकये हुए। एक वाकया इतना बड़ा हुआ कि उस शख्स ने मतलब बहू बेटा थे जो अपने सास ससुर से अलहदा रहते थे ना, तो मियाँ बीवी का ही इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि उसने अपनी बीवी को पूरी रात तशद्दुद का निशाना बनाया और सुबह तक उस बच्ची की उसने शौहर ने जान ले ली और वो इंतकाल कर गई बेचारी। तशद्दुद की मतलब इतनी उस पर तशद्दुद हुआ कि वो अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए वो मतलब मर गई बच्ची। और वो शौहर सुबह उठकर बिल्कुल खामोशी से घर से निकल गया। उसका भी एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा रोता बिलखता रहा। तो बाद में उन लोगों ने, महल्ले पड़ोस वालों ने देखा कि बच्चा इतना रो रहा है, उनके घर को नॉक किया, मतलब घर भी बंद करके चला गया ताला लगा करके, कोई समझे घर पर कोई है ही नहीं। और वो औरत मर चुकी थी और वो बच्चा रो रो कर भी, मासूम बच्चा भी बेहोश हो गया था, क्योंकि वो बच्चा कितना रोता, छोटा सा, वो 2.5-3 साल का बच्चा था। और कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। फिर पड़ोसियों ने पुलिस को इतला दी और पुलिस ने आकर वो दरवाजा तोड़ा, जाकर देखा तो वो लड़की मर चुकी थी और बच्चा बेहोश पड़ा हुआ था। और वो मशहूर लोग हैं, उनकी बेकरी भी है हैदराबाद सिंध के अंदर, बड़े अमीर कबीर लोग हैं। और वो लड़का बाद में छूट भी गया, मतलब हमारे कानून को वो जो भी उन्होंने किया क्या नहीं किया कि वो वाकई रिहा हो गया। तो यहाँ भी ऐसे वाकयात होते हैं। और मेरी बेटी वकील है, आए दिन बताती है कि कोर्ट में ऐसे केस चल रहे होते हैं अम्मी, कि एक आदमी ने अपनी बीवी को जिंदा जला दिया। मतलब रात को लड़ाई हुई मियाँ बीवी की और उसने अपना कमरा लॉक करके और बीवी के बेड पर आग लगा दी और बाहर निकल गया। बीवी चीखती रही, चिल्लाती रही और उसका बच्चा भी साथ में मर गया जल भुनकर। वो प्रेग्नेंट औरत थी, उसका पेट में भी एक बच्चा था और एक उसका जीता जागता भी बच्चा था, 2-3 साल का मासूम बेटा उसका, वो भी जल गया बेड पर। और वो खुद औरत भी जल गई, उसके पेट में बच्चा भी जल गया। और सास ससुर देवर जेठ सब करीब करीब में रहते थे। उतनी वो चीखी चिल्लाई, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। सास ससुर मदद के लिए नहीं आए, देवर जेठ मदद के लिए नहीं आए, दिवरानियां जिठानियां मदद के लिए नहीं आई। उस बच्ची को जलाकर भस्म कर दिया उसके बेडरूम में। उसके जब वालिदैन आए तो वो बच्ची निकाली गई बेडरूम से। तो ये हैदराबाद सिंध के वाकयात हैं। तो क्या आप सिंध को हम बुरा कहना शुरू कर देंगे? और वो केस चल रहा है, उसको मतलब जज ने सजा दी है उस आदमी को, वो 2-3 साल से जेल में है, क्योंकि उसके माँ बाप ने केस लड़ा कि हमारी बच्ची का क्या कसूर था, नहीं पसंद थी तो तलाक दे देता, मारने का हक नहीं रखता था। तो ये सिंध का वाकया है। सिंध में भी ऐसे वाकयात होते हैं। तो क्या सिंध में सारे लोग अपनी बीवियों को मार रहे हैं, सारे सास ससुर अपनी बहू को जला रहे हैं, काट रहे हैं, नालों में बहा रहे हैं? नहीं, ये हर जगह का वाकया हो सकता है, हर सूबे का वाकया हो सकता है। ये हमारे पाकिस्तान में जितने भी मुल्क और मतलब शहर है, वहाँ ये वाकयात आए दिन होते रहते हैं। हम कैसे मखसूस एक शहर को टारगेट कर सकते हैं? हम कैसे एक सूबे को टारगेट कर सकते हैं कि हर वाकया पंजाब से मंसूब कर दिया जाता है?
کہ पंजाब में ये होता है, पंजाब में वो होता है। ठीक है, आप लोगों के साथ पंजाब में बुरा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं आप भी गलत होंगे, कहीं ना कहीं वो भी गलत होंगे। जरूरी नहीं कि वो ही गलत होंगे, सास ससुर शौहर। लड़की भी तो बुरी हो सकती है ना। कुछ तो ऐसी वजूहात होती हैं जो ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं, लेकिन किसी को काटने पीटने का आप हक नहीं रखते। आप की नहीं बन रही, आप डिवोर्स दे दें। शौहर की नहीं बन रही, डिवोर्स दे दें। सास ससुर से नहीं बन रही, अलैदगी इख्तियार कर लें सास ससुर से। लेकिन सास ससुर और बहू एक दूसरे को काटने पीटने का कोई इख्तियार नहीं रखते। ये तमाम इख्तियारात हमारे अल्लाह और उसके रसूल को हैं कि हमारी जान लेने का हक सिर्फ अल्लाह को है, इंसानों को नहीं। और अगर इंसान ऐसे वाकयात करते हैं तो वो सजा भी पाते हैं। इसलिए जो लोग पंजाब को टारगेट करते हैं वो बंद करें पंजाब को टारगेट करना। सिंध को भी टारगेट किया जा सकता है, सिंध में भी आए दिन ऐसे वाकयात होते रहते हैं। गांव गोठों में जाकर देखें, क्या कुछ नहीं हो रहा बहुओं के साथ और सास ससुरों के साथ। तो बहू में भी कहीं ना कहीं गलत है और कहीं ना कहीं सास ससुर भी गलत है। पंजाब में अगर 4-5 लड़कियों के साथ वाकयात हो गए तो क्या सारे लोग बुरे नहीं हो गए? और वो 4-5 लड़कियां भी कुछ ना कुछ डिफाल्टर होंगी। ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी के साथ ऐसे नाजायज ज्यादती कर देगा, और नाजायज ज्यादती होगी तो उसको सजा भी मिलेगी। तो भाई मैं आज वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि हमारी आयशा कनाडा बहन ने भी आज इस पर आवाज उठाई है कि पाकिस्तान में ऐसे वाकयात होते रहते हैं, एक शहर को क्यों टारगेट किया जाता है। तो वो मैं उनको आज यहाँ पर कहना चाहूंगी आयशा कनाडा को कि वो हमेशा अच्छी बात करती है। मुझे आए दिन अक्सर लोग कहते रहते हैं कि आप आयशा कनाडा पर बात करें, वो उसको कह रही है, वो उसको कह रही है। भाई मैंने कहा कि वो बहुत समझदार पढ़ी लिखी खातून है, वो जॉब करती है और अमेरिका में रहती है, इतने बड़े कनाडा में रहती है, कहीं भी वो मतलब रहती तो बाहर की कंट्री में है ना। तो वो बहुत समझदार खातून है, वो बहुत अच्छी खातून है, वो समझदारी से ही हर काम करते हैं। वो वीडियो जिस पर उन्हें समझ लगती है वो बनाती है लाजमी। वो किसी एक बंदे पर नहीं बनाती है, किसी एक मखसूस बंदे को नहीं चुन लेती हैं। जहां उन्हें सही लगता है वो बोलती हैं, जहां उन्हें गलत लगता है वो बोलती हैं। वो हक और सच पर बात करती हैं। वो बहुत पावरफुल लेडी है, वो किसी पर ऐसे नाजायज तोहमत और गलत बात करती ही नहीं है। ठीक है, वो बहुत अच्छी हैं और मुझे उनकी रिएक्शन बहुत पसंद है और मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। तो जब वो गलत ही नहीं है तो मैं उन पर वीडियो किस खुशी में बनाऊं? आई समझ में? बस मेरा रिएक्शन आज यहाँ तक ही है। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज।